Dear students, today we are going to start Maths Part 2, Chapter 3, Indefinite Integration, Exercise 3.2a. Now see today question number 2 means set 2, question set 2, integrate the following with respect to x. See question number 10, let I equal to integral of cos raised to 8x into cot of x dx. Your integration is 8 power of x and into cot x dx. So how will you integrate it? First think about cos raised to 8x and then cot x. So cos raised to 8x can be written as cos square x whole raised to 4x, because power into power, here 2 into 4, that is cos raised to 8x. So cos raised to 8x can be written as cos square x whole raised to 4. And you know very well cot x formula is cos x upon sin x in terms of sin cos into dx. So I equal to integral of cos square x whole raised to 4 into cos x upon sin x into dx. This is the trigonometric conversion only. But you know very well an identity sin square theta plus cos square theta equal to 1. So if we want to find cos square theta, so this will be cos square theta equal to 1 minus sin square theta, means taking sin square theta on the right hand side. So we have here cos square x. So this will be integral of cos square x is what? 1 minus sin square x, and raised to 4 as it is raised to 4, 1 minus sin square x whole raised to 4 into cos x upon sin x into dx. तो ये तो हो गया only conversion of an identity, means cos square x can be written as 1 minus sin square x whole raised to 4 whole raised to 4 as it is. Now we see that if we put sin x equal to t, so this gives cos x dx equal to dt. तो चलो पुट कर लेते हैं फिर, क्योंकि अपना sin x का कन्वर्जन यहाँ पर क्या है, sin x सब्स्टिट्यूशन. So cos x dx easily can be converted in dt. So now see, put sin x equal to t. What you have to substitute? Put sin x equal to t. Now differentiating with respect to x on both sides. So derivative of sin x is cos x and derivative of t is dt by dx. So taking dx on the left hand side. So therefore cos x into dx equal to dt, and we have here cos x into dx. Now see this numerator, cos x into dx means this is converted in dt from here, and remaining term will be what? Remaining term will be sin square x here. So therefore I equal to integral of 1 minus t square whole raised to 4, because sin x is t. So I equal to integral of 1 minus t square whole raised to 4 into what is remaining here, only sin x, means 1 upon sin x is remaining. So this will be 1 upon t into dt. See once again, therefore I equal to integral of 1 minus t square whole raised to 4 into 1 upon t dt, because cos x dx becomes dt, and here only sin x remaining, means 1 upon sin x. So this will be 1 upon t. Now we expand it, 1 minus t square whole raised to 4. Now see, it has two methods, 1 minus t square whole square and then whole square, or you can say 1 minus t square whole square into 1 minus t square whole square 2 times. You can expand by a minus b whole square formula and then multiply both the terms. Otherwise, what we have taken here, now see, this is 1 minus t square whole raised to 4. So for 4, power 4,
our coefficients are 1, 4, 6, 4, 1 by Pascal triangle, or you can say by binomial expansion. You can take the help here by binomial expansion a minus b whole raised to 4, means using a minus b whole raised to n formula where n equal to 4. Binomial expansion, which you have studied in previous standard. So 1 minus t square whole raised to 4 is equal to 1 minus 4t square plus 6t raised to 4 minus 4t raised to 6 plus t raised to 8 into 1 by t, means whole divided by t into dt. So integral of 1 minus 4t square plus 6t raised to 4 minus 4t raised to 6 plus t raised to 8 upon t into dt. Now separate each 1 upon t. So integral of, here use your bracket, rectangular bracket, 1 by t minus 4t square upon t, 4t plus 6t raised to 4 upon t, 6t cube minus 4t raised to 6 upon t minus 4t raised to 5, 1 power deducted, plus t raised to 8 upon t becomes t raised to 7 whole dt. Now integrate each term separately by using proper formula. So it is equal to, now see this first one, integral of 1 upon t dt. Integral of 1 upon t dt is log of t minus 4 as it is integral of t dt, t square by 2 plus 6 as it is integral of t cube dt is t raised to 4 by 4 minus 4 as it is integral of t raised to 5 dt, t raised to 6 upon 6 plus integral of t raised to 7, t raised to 8 upon 8 plus constant of integration. Now we should simplify and substitute the value of t. So t was, now see this, t was sin x. So therefore I equal to log t becomes log of sin x, value of t is sin x, minus here 2 2s are 4, so this will be 2 t square, that is 2 sin square x, plus here 2 3s are 6, 2 2s are 4, means going by 2, plus 3 upon 2 t raised to 4 means sin raised to 4x, minus 2 2s are 4, 2 3s are 6, minus 2 by 3, t raised to 6 becomes sin raised to 6x, plus sin raised to 8 upon 8 plus constant of integration. So dear students, attention here, in the textbook this answer is wrongly printed. So this is the correct answer of this question. So solve this question by very carefully and correct your answer also. So this was very easy solution. Hope all students understood this question. So I equal to, see once again this answer, I equal to log of sin x minus 2 sin square x plus 3 upon 2 sin raised to 4x minus 2 upon 3 sin raised to 6x plus sin raised to 8x upon 8 plus c, where c is constant of integration which is fixed in each answer. Dear students, if you are new on Rajendra's teaching, so please subscribe the channel first. सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए, प्रेस करके रखिए, जिससे हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस अपडेट आप लोगों को कंटिन्यूअस मिलती रहेगी। और जैसा कि पता ही है, इंटीग्रेशन चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम एज वेल एज JEE एंड JEE एडवांस आल्सो, or in any other exams related to maths. Now see question number 11. Let I equal to integral of tan raised to 5x dx. इंटीग्रल ऑफ tan रेज टू 5x dx. तो सबसे पहले स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि tan रेज टू 5x dx का इंटीग्रेशन कैसे करें। तो मैं एक यहाँ पर सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी
इनके ऑड पावर्स हैं, तो जैसा मैंने अभी यहाँ पर मेथड दिया है ठीक उसी मेथड से जाना है, तो ये एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा और समझने में भी बहुत इजी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, इंटीग्रल ऑफ tan रेज टू 5x dx, क्या करते हैं इसको ब्रेक कर लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan क्यूब एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, बिकॉज 3 + 2 इज tan रेज टू 5। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो tan क्यूब एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स बिकम्स tan रेज टू 5x dx। बट एक क्वेश्चन यहाँ पर ये क्लियर होता है, कंफर्म कर लो कि हम इसको tan रेज टू 4x इंटू tan x क्यों नहीं लिख सकते। उसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर इसको tan रेज टू 4 इंटू tan x में ब्रेक करते हैं, tan रेज टू 4 इंटू tan x, तो हमारे पास जो सब्सटीट्यूशन है वो प्रॉपर सब्सटीट्यूशन sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में एडजस्ट नहीं हो पाएगा और sec x के पावर भी हायर हो जाएंगे, उसको फिर से रिकन्वर्ट करना पड़ेगा, ये रीज़न है। तो हमें देखो कोई भी जैसे tan क्यूब आ गया, tan 5 आ गया, tan 7 आ गया, tan 9 आ गया, अगर इनके पावर 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा जो भी हो, अगर ऐसा आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक tan स्क्वायर एक्स उसमें से आउट करना है, जैसा कि यहाँ पर आउट कर लिया गया। तो tan रेज टू 5x dx कैन बी रिटन एज tan क्यूब एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू dx, एंड वी नो an identity 1 plus tan square theta equal to sec square theta. So tan square theta is what? Sec square theta minus 1. Taking plus 1 on the right hand side, we get tan square theta equal to sec square theta minus 1. So this tan square x can be written as sec square x minus 1. So our integral I equal to integral of tan cube x into sec square x minus 1 into dx. Easily you can convert tan square x is sec square x minus 1 by using this identity. After that, what will you do in this question? Now open the bracket. क्योंकि देखो अगर यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर ले, मान लो कि हमने ब्रैकेट ओपन नहीं किया और हम यहीं से ट्राई करना चाहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन फाइनल हो जाए, तो व्हाट विल बी प्रॉब्लम क्रिएटेड हियर? इफ वी पुट tan x इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर एक्स dx बिकम dt, तो -1 इसमें एडजस्ट नहीं हुआ, राइट? तो -1 के लिए हमें एडजस्टमेंट वापस से करना पड़ेगा, तो दिस इज द रीजन वी शुड ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट. So integral of tan cube x into sec square x here minus 1 into tan cube x minus tan cube x whole dx. तो यहाँ पर क्या किएगा, जस्ट मल्टीप्लाई बाय tan cube x in the bracket. तो this will be integral of tan cube x into sec square x minus tan cube x dx. Now separate in terms of two integrals. So this can be written as integral of tan cube x into sec square x minus this tan cube x can be written tan square x into tan x whole dx. देखो tan क्यूब वापस से tan क्यूब हो गया, जैसा अभी मैंने रूल एक्सप्लेन किया था, हमें इसको tan स्क्वायर में ब्रेक करना है, तो हमने फिर से इसको tan स्क्वायर में बना दिया, tan स्क्वायर x into tan x, this tan cube only. So this will be equal to integral of tan cube x into sec square x into dx. अब ये एक इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, माइनस this tan square x can be written as sec square x minus 1 by using same identity here. So integral of sec square x minus 1, this is the value of tan square x into tan x into dx. थोड़ा सा ओवरराइट हो गया, सॉरी, sec square x minus 1 into tan x into dx. मैं यहाँ डिक्टेट कर देता हूँ, this is tan x. It is equal to integral of tan cube x into sec square x into dx minus sec square x into tan x, this one into dx, माइनस देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 1 इंटू tan x प्लस इंटीग्रल ऑफ tan x dx. मीन्स अभी हमारे पास टोटल मिला करके 3 टर्म्स हो गए इसमें, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड. ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 इंटीग्रल्स यहाँ पर रेडी हो गए. तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट इंटीग्रल में क्या है, tan क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेकेंड इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ tan x dx. मीन्स फर्स्ट टू इंटीग्रल्स are containing
sec square x, but not last one. तो अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए उसको देखिए. What will you do after this step? Put tan x equal to t. फॉर फर्स्ट टू इंटीग्रल्स मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि जिससे स्टूडेंट को डाउट ना हो कि हमने इसके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं किया है. हम इसके लिए नहीं कर रहे हैं. फॉर फर्स्ट टू इंटीग्रल्स ओनली पुट tan x इक्वल टू टी. फॉर फर्स्ट टू इंटीग्रल मतलब फर्स्ट के लिए और ये सेकंड के लिए, ये दो के लिए tan x को हमने t एज्यूम किया. क्यों? उसका रीजन देखो. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. देयरफॉर sec square x into dx equal to dt, because derivative of tan x is sec square x, derivative of t is dt by dx, so taking dx on left hand side. So therefore sec square x into dx equal to dt. फिर से देख लो. For first two integrals put tan x equal to t, but not for third, क्योंकि वहां पर वेरी क्लियर मैंने यहाँ पर कर दिया है फॉर फर्स्ट टू इंटीग्रल्स. ठीक है, क्योंकि देखो इसमें सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये डी टी बन जाएगा और हमने tan एक्स को टी लिया, ये टी क्यूब बन जाएगा. ठीक, यहाँ भी देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. अगर इनको सेक स्क्वायर एक्स को यहाँ लिखना चाहते हो तो इंटरचेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ये क्या बन जाएगा? डी टी, और ये tan एक्स क्या हो जाएगा? टी. लेकिन लास्ट वाले में अगर हम लोग tan एक्स को टी ले लेते हैं तो यहाँ पर सेक स्क्वायर है ही नहीं, इसके लिए हम इसमें नहीं यूज करेंगे थर्ड वाले में. ओके, तो चलो अब आफ्टर दिस एडजस्टमेंट देखते हैं कि क्या चेंजेस हुआ. देयरफॉर आई इक्वल टू, अब देखो यहाँ क्या बचेगा? ओनली टी क्यूब, और ये पूरा डी टी हो चुका है जैसा कि मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया. तो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी क्यूब डी टी माइनस सेकंड में सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी हो चुका है, सिर्फ tan एक्स बचता है, तो टी इंटू डी टी प्लस लास्ट वाले को हम इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रल ऑफ tan एक्स डी एक्स इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स. यहाँ पर एक इंटीग्रेशन हो गया तो यहाँ प्लस C1 लिख सकते हो, या अब दो इंटीग्रल अभी रिमेनिंग है, हम लोग सबको मिलाकर एक ही कांस्टेंट लास्ट में C लिख देंगे. ओके, नाउ सी इंटीग्रल ऑफ टी क्यूब डी टी. तो टी क्यूब के लिए क्या करना है? एक्स रेज टू एन डी एक्स का फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स, यू नो वेरी वेल, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. So integral of t cube dt is t raised to 3 plus 1 upon 3 plus 1, that is t raised to 4 upon 4, minus integral of t dt t raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1, that is t square by 2, plus log of mod of sec x as it is, plus c which is constant of integration, because all integrals over, सभी इंटीग्रल हो गए अभी. बट वैल्यू ऑफ t जो कि अभी रीसब्स्टिट्यूट करनी है फर्स्ट टू टर्म्स में, वो भी रिमेनिंग है, तो डोंट फॉरगेट रीसब्स्टिट्यूशन. देयरफॉर आई इक्वल टू, देखो t रेज टू 4 बाई 4 मीन्स 1 अपॉन 4, t रेज टू 4 हियर दैट इज tan रेज टू 4x, बिकॉज t इक्वल टू tan रेज टू tan x, t इक्वल टू tan x, माइनस 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर x प्लस log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c which is constant of integration. So this is the final answer for question number 11. I equal to 1 by 4 tan raised to 4x minus 1 upon 2 tan square x plus log of mod of sec x plus c. One most important thing, sometimes student को ये problem होती है कि can we write tan x whole raised to 4? Yes. तो क्या करना है? 1 by 4 as it is, tan x एक ब्रैकेट यूज करोगे यहाँ पर और होल रेज टू 4 ब्रैकेट के बाहर यूज करोगे. बट यू कांट राइट tan x रेज टू 4, ये ध्यान देना है, ओनली x रेज टू 4 नहीं लिख सकते इसको. tan x एक ब्रैकेट में क्लोज करो किसी भी ब्रैकेट में, और बाहर जो है ब्रैकेट के ऊपर वहां पर रेज टू 4 लिख सकते हो. ऐसे ही यहाँ पर tan x द होल स्क्वायर ये चलेगा. So both are correct answers. You can write in any one form. Therefore, I equal to 1 by 4 tan raised to 4x minus 1 by 2 tan square x plus log of mod of sec x plus c, or you can use here bracket. Okay, so question number 11 completed. Now see question number 12. Let I equal to integral of cos raised to 7x into dx. Integral of cos raised to 7x into dx. तो सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट थिंग
आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos रेज टू 6x इंटू कॉस रेज टू x इंटू डी एक्स, क्योंकि देखो इसकी पावर 6 है और इसकी पावर क्या है 1। व्हेन वी मल्टीप्लाई वी गेट अगेन cos रेज टू 7x, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है, अगर हम स्टेप को बैक करते हैं तो हमारा प्रीवियस स्टेप आना चाहिए, अगर नहीं आता मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। सो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos रेज टू 6x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करोगे? अब cos raised to 6x, this is the even power. Cos raised to 6x can be written as cos square x whole cube, because 2 into 3 6, ये फिर से 6 आ जाएगा, into cos x into dx. So this is equal to integral of cos square x whole cube into cos x into dx. Now see an identity, sin square theta plus cos square theta is 1. Therefore cos square theta equal to 1 minus sin square theta. तो cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और यहाँ पर होल क्यूब है, यहाँ भी होल क्यूब रहेगा, इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। नाउ पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। देखो पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, क्यों? क्योंकि इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, वी गेट cos x into dx equal to dt, cos x into dx equal to dt। तो अब क्या करेंगे? therefore I equal to integral of 1 minus t square here, तो ब्रैकेट 1 minus t square whole cube into dt। देखो cos x dx becomes dt, और इसको हमने t एज्यूम किया है, राइट? तो 1 minus t square whole cube, और ये टोटल टर्म becomes dt। So I equal to integral of 1 minus t square whole cube into dt. Now using a minus b whole cube formula. What is a minus b whole cube? A cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. So expand by using the formula a minus b whole cube, we get what we get? We get here integral of 1 minus 3t square plus 3t raised to 4 minus t raised to 6 whole dt. Now integrate each term separately. अब इनको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये t के फॉर्म में इसका आंसर मिलेगा, लेकिन हमें फिर t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करनी है। तो चलो इंटीग्रेट वन बाय वन। Therefore I equal to इंटीग्रल ऑफ 1 dt। देखो dt यहाँ पर सबके लिए है, तो 1 dt इज t only माइनस 3 as it is, integral of t square dt t cube upon 3 plus this 3 as it is, integral of t raised to 4 t raised to 5 upon 5 minus integral of t raised to 6 dt t raised to 7 upon 7 plus constant of integration. Now we resubstitute the value of t. So t was sin x. Therefore I equal to sin x minus, here 3 get cancelled, sin cube x plus 3 upon 5 as it is, t raised to 5 that is sin raised to 5x minus 1 upon 7 sin raised to 7x plus c। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन अभी यहाँ पर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। So I equal to sin x minus sin cube x plus 3 upon 5 sin raised to 5x minus 1 by 7 sin raised to 7x plus c. This is the answer for question number 11. Now let us see question number 13. Let I equal to integral of tan 3x into tan 2x into tan x into dx. There is a multiplication in 3 tan terms and their angles are 3x, 2x and x respectively. So I equal to integral of tan 3x into tan 2x into tan x into dx. अब सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास इंटीग्रेशन में तीनों टर्म tan में है, हम इनको मल्टीप्लाई कर तो नहीं सकते, और मल्टीप्लिकेशन का रूल अभी तक
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी नहीं बताया और उससे भी हम कर भी नहीं सकते बिकॉज देयर आर 3 टर्म्स। तो ये टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है कि tan से रिलेटेड क्वेश्चन हो और सबसे बड़ा एंगल पहले ऑब्जर्व करना चाहिए, व्हाट इज द बिगेस्ट एंगल इज 3x। तो क्या बिगेस्ट एंगल को हम स्मॉलेस्ट में ब्रेक कर सकते हैं? यस, वी कैन ब्रेक इट। सिंस 3x इक्वल टू 2x प्लस x लिख सकते हो, श्योर कंफर्म कर लो, यस। सिंस 3x इक्वल टू 2x प्लस x लिख सकते हो ना, यस। नाउ टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर tan 3x इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस x। जैसे tan रेशियो हमने बोथ साइड यूज कर लिया, तो देयरफॉर tan 3x इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस x ऐड करोगे फिर से वही होगा ना, tan 3x इक्वल टू tan 3x, बट do not write tan 3x equal to tan 3x because tan 3x, this tan 3x as it is here using tan a plus b formula. So what is tan a plus b? Tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. Using that formula we get tan 2x plus tan x upon 1 minus tan 2x into tan x. This is the formula for tan a plus b. फिर से देख लो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया, डोंट फॉरगेट, नोट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट। लिख लो tan a plus b equals tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। ओके, तो उम्मीद करता हूँ फार्मूला आप नोट कर चुके होंगे। तो आगे चलता हूँ। देयरफॉर tan 3x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, ये हो गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब हम क्या करते हैं, tan 3x को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं या इनको हम पूरा ले जाते हैं लेफ्ट साइड में। देखो tan 3x इंटू 1 बिकम्स tan 3x माइनस tan 3x इंटू बोथ, तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल टू दिस न्यूमरेटर tan 2x प्लस tan x एज इट इज। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हमारे पास वैल्यू किसकी चाहिए, tan 3 इंटू tan 2 इंटू tan x। तो उसको हम लोग रीएडजस्ट करते हैं, टेकिंग tan 2x प्लस tan x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो देयरफॉर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल टू टेकिंग दिस, देखो यहाँ पर माइनस ए पार्ट दिस साइड आएगा तो क्या हो गया पॉजिटिव, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। तो ये हमें मिल गया कि tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x becomes tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ये पार्ट में आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए उसको देखते हैं। अब हमें इंटीग्रल पर जाना चाहिए वापस, इसकी वैल्यू हमें मिल गई और यहाँ पर आ गया माइनस, यहाँ पर आ गया माइनस, बस बाकी कुछ चेंजेस नहीं हुआ इतना करने के बाद। तो देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इंटू dx। नाउ इंटीग्रेट ईच टर्म सेपरेटली। अब देखो इनको इंटीग्रेट करके हमें क्या मिलता है। इंटीग्रल ऑफ tan 3x इज log ऑफ mod ऑफ sec 3x अपॉन 3, वाई अपॉन 3 बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। अगर ये सिर्फ x होता, जैसे लास्ट टर्म में है सिर्फ log sec x होता है, राइट। जब भी इसके कोफिशिएंट आएंगे तो हम लोग इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ tan 3x इज log mod sec 3x अपॉन 3 एंटायर अपॉन 3, ये ध्यान देना, माइनस इंटीग्रल ऑफ tan 2x log ऑफ mod ऑफ sec 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x dx log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्म में आंसर को ऐसा भी लिख के छोड़ सकते हो यहाँ पर, देखो देयरफॉर I इक्वल टू 1/3, दिस इज कांस्टेंट 1/3 log ऑफ mod ऑफ sec 3x, और you can use bracket also, minus 1/2 log mod sec 2x minus log mod sec x plus c। तो ये आंसर भी फाइनल आंसर बेस्ट आंसर है, ऐसा भी लिख करके छोड़ सकते हो यहाँ तक। लेकिन अगर टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया उसको चाहिए तो उसको थोड़ा रीएडजस्ट करना है। क्या रीएडजस्ट करना, देखो एलसीएम ऑफ 3 एंड 2, इसका डिनोमिनेटर नथिंग दैट इज 1, तो एलसीएम ऑफ 1 2 एंड 3 इज 6, एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 6। तो इस डिनोमिनेटर को 6 करने के लिए यहाँ 2 इंटू 2 करोगे, देखो 2/6 हो जाएगा, यहाँ पर इंटू 3 3/6, यहाँ पर इंटू 6 अपॉन 6 दैट इज 6/6। तो ईच डिनोमिनेटर हो गए 6,
तो ऊपर क्या हो गया न्यूमरेटर में, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6। तो उसको लिखने के लिए 1/6 को हमने कर लिया कॉमन। ठीक है, तो I इक्वल टू 1/6 कॉमन इनटू, यहाँ पर क्या रिमेनिंग था, क्या बताया था मैंने, याद है ना? यस, तो 2 log sec 3x, 2 log mod ऑफ sec 3x माइनस यहाँ पर क्या रिमेनिंग था 3, तो -3 log ऑफ mod sec 2x minus what was remaining here 6 minus 6 log mod sec x plus c। ओके, तो एलसीएम हमने यहाँ पर कर लिया, सबका 6 हो गया और 1/6 कॉमन, तो इन द ब्रैकेट वी गेट 2 log ऑफ mod ऑफ sec 3x minus 3 log ऑफ mod ऑफ sec 2x minus 6 log ऑफ mod ऑफ sec x और प्लस c। तो अब इसके बाद हमें क्या देखना है, देखो n इंटू लॉग एम क्या होता है, log m रेज टू n मीन्स ये इसका पावर बन जाएगा स्क्वायर, और ये n इंटू लॉग एम यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा, और ये 6 इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स, तो लॉग सेक रेज टू लॉग सेक एक्स रेज टू 6 मीन्स यहाँ पर 6 पावर बन जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा। तो हम इस लोग देखो 1/6 एज इट इज इंटू लॉग देन करली ब्रैकेट लॉग देन ब्रैकेट सेक 3x होल स्क्वायर, ये पहले के लिए देखो इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसका होल स्क्वायर हो गया, अपॉन सेक 2x इसका होल क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर होल क्यूब, और यहाँ पर सेक 6x। तो ये टर्म्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, जो कि पहले का पावर 2, दूसरे का 3 और तीसरे का 6। उसके बाद इक्वल टू 1/6 log sec 3x स्क्वायर अपॉन sec 2x क्यूब इंटू sec x होल रेज टू 6 प्लस c। तो दिस इज द टेक्सटुअल आंसर, ये टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है यही आंसर है। देखो log m माइनस n माइनस log p, जैसे log m माइनस log n माइनस log p अगर ये फॉर्म में है तो log m जो पॉजिटिव है इसको न्यूमरेटर में रखना है, नेगेटिव को क्या करना है डिनोमिनेटर में इंटू कर देना है, log ऑफ m अपॉन n इंटू p, log m n p अगर दिया है तो इस तरह से log m माइनस log n माइनस log p इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n इंटू p। ठीक उसी फॉर्म को यहाँ पर यूज कर लिया। फिर से देख लो इसमें क्या है, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। I इक्वल टू 1/6 2 log ऑफ sec 3x माइनस 3 log ऑफ sec 2x माइनस 6 log ऑफ sec x प्लस c। तो 1/6 कॉमन इन ऑल, log ऑफ sec 3x स्क्वायर, क्योंकि देखो ये इसका पावर बन जाएगा, ये 3 इसका पावर बनेगा और 6 इसका पावर बनेगा, और log वन टाइम ही लिखना है, log ऑफ करली ब्रैकेट sec 3x होल स्क्वायर अपॉन sec 2x होल क्यूब इंटू sec x होल रेज टू 6 करली ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस c विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? तो ये पार्ट को हमें कंफर्म कर लेना है। वैसे बेस्ट आंसर ये भी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें ऑप्शन नहीं मैच हो रहा, नहीं ध्यान दे पा रहे हो, तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके अपने किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हैं। ओके, तो दिस इज द बेस्ट आंसर और दिस, तो एनीवन यू कैन राइट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं कि 14th क्वेश्चन में यहाँ पर क्या आता है। तो 14th क्वेश्चन के लिए let I equal to integral of sin raised to 5x into cos raised to 8x into dx। sin raised to 5 into cos raised to 8 into dx। तो यहाँ पर sin का पावर क्या है ऑड और cos का पावर है इवन। तो हम जिनका पावर ऑड है उनको ही चलते हैं एडजस्ट कर लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sin स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। देखो 2 2 जा 4 मीन्स sin raised to 4 into sin x becomes sin raised to 5। तो sin raised to 5x can be written as sin square x whole square into sin x, cos raised to 8x as it is into dx। Now using identity, जैसा कि मैं ये आइडेंटिटी को प्रीवियस क्वेश्चंस में बता चुका हूँ कि sin square x plus cos square x equal to 1, so sin square x is 1 minus cos square x। तो it is equal to integral of 1 minus cos square x whole square into cos raised to 8x into sin x into dx।
देखो सभी टर्म है, साइन एक्स डी एक्स को यहाँ लिख दिया, कॉस रेज टू 8x को यहाँ पर, और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एज इट इज। क्लियर। अब देखते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो इफ वी पुट cos x इक्वल टू टी एंड डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides, we get what is derivative of cos x, minus sin x. So minus sin x into dx equal to dt. This is the substitution. So cos x equal to t, therefore minus sin x into dx equal to dt. So therefore sin x into dx is minus dt. तो minus sin को right side में transfer कर देंगे, तो ये अपना sin x into dx becomes minus dt. ये minus dt हो गया, and remaining term will be converted in terms of t. Therefore I इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ, देखो माइनस साइन को क्यों लिया, क्योंकि माइनस डी टी आया था, तो हमने माइनस साइन को सबसे पहले आउट कर दिया, बाहर लिख लिया यहाँ पर, जिससे अंदर फिर बाद में मिस्टेक नहीं होगी। माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू टी रेज टू 8 डी टी। फिर से देखो कॉस एक्स को हमने टी लिया है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर दिस वन, कॉस रेज टू 8x दैट इज टी रेज टू 8 इंटू डी टी, क्योंकि ये माइनस डी टी है, इसका डी टी यहाँ पर है और माइनस साइन यहाँ पर है। इट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्सपैंड इट ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला, तो 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी रेज टू 4 इंटू टी रेज टू 8 इंटू डी टी। तो एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर बिकम्स 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी रेज टू 4 इंटू टी रेज टू 8 into dt. Now multiply by t raised to 8 in the bracket. So this is equal to minus of integral 1 into t raised to 8 minus 2t square into t raised to 8. तो हम पावर को क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं, तो माइनस 2t raised to 10, देखो 2 plus 8 becomes 10 plus t raised to 4 into t raised to 8, 4 plus 8 becomes 12. So plus t raised to 12 whole dt. Now we should integrate each term separately with respect to t. So minus sign as it is, integral of t raised to 8 dt is t raised to 9 upon 9 minus 2 as it is, integral of t raised to 10 dt is t raised to 11 by 11 plus integral of t raised to 12 dt is t raised to 13 upon 13 bracket closed plus c. Now we should resubstitute the value of t. माइनस साइन एज इट इज, माइनस साइन को कैसा रखना है, एज इट इज। तो अगर हम लोग यहाँ माइनस को बाहर रखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में सेम साइन रहेगी, और अगर ब्रैकेट को ओपन रखना चाहते हो तो ब्रैकेट के अंदर की सभी साइन को अपोजिट कर देनी, मीन्स चेंज कर देनी है। तो माइनस 1/9, व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी, कॉस एक्स, सो कॉस रेज टू 9x, दिस इज कॉस रेज टू 9x plus 2/11 because minus minus plus 2/11 cos raised to 11x minus here plus into minus minus 1/13 cos raised to 13x plus c. So this is equal to minus 1/9 cos raised to 9x plus 2/11 cos raised to 11x minus 1/13 cos raised to 13x plus c. Therefore I इक्वल टू 2/11, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्म को लिख लेते हैं, 2/11 cos रेज टू 11x माइनस 1/9 cos रेज टू 9x दिस वन माइनस 1/13 cos रेज टू 13x plus c which is constant of integration. So therefore integral of what, integral of sin raised to 5x into cos raised to 8x dx is 2/11 cos raised to 11x minus 1/9 cos raised to 9x minus 1/13 cos raised to 13x plus c. तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर में समवेयर मिस्टेक्स हैं, तो मैंने यहाँ पर करेक्ट आंसर दे दिया है, आप लोग चेक करके अपने टेक्स्ट बुक का आंसर करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में कुछ डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, तो उसको क्या करोगे, अपना करेक्ट कर लोगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14।
अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। देखो 3 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हमें ये थिंक करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव क्या ये हो सकता है? नेवर। इसका होल का डेरिवेटिव क्या हो सकता है? नेवर, नहीं पॉसिबल। लेकिन सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमें साइन 2x के फॉर्म में मिल सकता है, ये चांसेस हैं। तो चलो लेट अस ट्राई। पुट cos square x equal to t. Put cos square x equal to t. Now differentiating with respect to x on both sides. Derivative of cos square x is 2 cos x into d by dx of cos x. 2 cos x into d by dx of cos x. तो d by dx of cos x क्या होता है? माइनस साइन x. So therefore derivative of cos square x is 2 cos x into minus sin x equal to dt upon dx. Taking dx on the left hand side and minus sin on the right hand side. और देखो दूसरी चीज 2 cos x into sin x, एक इसका फॉर्मूला है sin 2x का। 2 sin x into cos x और 2 cos x into sin x becomes a sin 2x. So therefore sin 2x into dx equal to minus dt. Taking minus sign on the right hand side and dx on the left hand side. So we get sin 2x into dx equal to minus dt. और ये देखो sin 2x dx हो गया यहाँ पर एडजस्ट। तो दिस विल बी माइनस dt और यहाँ क्या हो जाएगा? 3 रेज टू t. तो देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस 3 रेज टू t dt। ये माइनस साइन को इंटीग्रल से बाहर भी लिख सकते हो। तो यूजिंग द फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ 3 रेज टू t dt के लिए क्या करना है? a रेज टू x dx की फॉर्मूला है। तो कैन यू से व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ a रेज टू x dx? यस, ओके। तो इंटीग्रल ऑफ a रेज टू x dx इज a रेज टू x अपॉन log ऑफ a प्लस c। करेक्ट फॉर्मूला। इंटीग्रल ऑफ a raised to x dx equal to a raised to x upon log of a plus c. So इंटीग्रल ऑफ 3 raised to t, देखो माइनस साइन को हमने एज इट इज रखा है। इंटीग्रल ऑफ 3 raised to t, 3 raised to t अपॉन log of 3 प्लस c. तो माइनस ऑफ 3 raised to t अपॉन log 3 plus c. Now resubstitute the value of t. It is equal to minus 3 raised to cos square x upon log 3 plus c, constant of integration, and it can be written as I equal to minus 1 upon log 3, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसको हम साइड में लिख लेते हैं, minus 1 upon log 3 into 3 raised to cos square x plus c, which is constant of integration. So this is the good question for any exam, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसमें थोड़ा चेंजेस करके भी दिए जा सकते हैं। कभी सपोज कर लो अगर 3 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स होता तो क्या होता? तो भी हम लोग साइन स्क्वायर को ही टी लेते, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव भी क्या है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वो भी साइन 2x होता है। तो इन केस चेंज भी हो सकते हैं क्वेश्चन, जैसे 3 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स या 3 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ भी रहेगा, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, दोनों ही केस में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को टी लेना है और हमारा साइन 2x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अगर कॉस स्क्वायर है तो नेगेटिव साइन का भी ध्यान देना है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गए। क्योंकि जो स्टूडेंट अभी यहाँ पर न्यू ज्वाइन हुए हैं, आज सपोज कर लो आज का ही वीडियो देख रहे हो, तो हमारे प्रीवियस वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के सोल्यूशन दिए जा चुके हैं। आप लोग वहाँ जा करके सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो। एंड वन मोर थिंग, सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है राजेंद्रौज टीचिंग, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 16। सी क्वेश्चन नंबर 16। लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन 6x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x इंटू dx।
तो इंटीग्रल ऑफ साइन 6x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x dx इज अ रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि इसमें फॉर्मूले को किस तरह से एडजस्ट करना है। तो we see that 6x is related to 10 and 4 as 10x minus 4x. Means I equal to integral of sine, देखो 6x can be written as 10x minus 4x in a bracket. Sine of 10x minus 4x upon sine 10x into sine 4x into dx as it is. सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेप में मैंने क्या चेंजेस किया, देखो 6x को 10x माइनस 4x में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। तो अगर हम लोग 6x को भी 10 और 4 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आगे के जो फॉर्मूले आने वाले हैं इससे रिलेटेड हो जाएंगे और हमारा इंटीग्रल आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये रीज़न होता है चेंज करने का। ऐसा नहीं कि हमने 6x को हम दूसरे भी फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत से ऐसे नंबर्स हैं कि हम इसको 11 माइनस 5 भी लिख सकते हैं, 5x प्लस x भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 2x भी लिख सकते हैं। लेकिन उसको क्यों नहीं लिखा गया? क्यों? क्योंकि हमारा 10x और 4x डिनोमिनेटर में एंगल है। तो हम अगर न्यूमरेटर में भी साइन ऑफ 10x माइनस 4x लिख लेते हैं तो एक्सपैंड करने के बाद ये सभी टर्म कहीं ना कहीं किसी से रिलेटेड हो जाएंगे और हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। इसके लिए ऐसा करना पड़ता है। तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 10x माइनस 4x upon sin 10x into sin 4x into dx. Now using formula sin of a minus b in the numerator. तो sin of a minus b क्या होता है, यहाँ साइड में लिख लीजिए, मैं टाइम दे देता हूँ और डिक्टेट भी करता हूँ। sin of a minus b इक्वल टू sin a cos b minus cos a into sin b. This is formula. Therefore I equal to integral of sin 10x into cos 4x minus cos 10x into sin 4x entire upon sin 10x into sin 4x into dx. So using sin a minus b formula, we get integral of sin 10x into cos 4x minus cos 10x into sin 4x upon sin 10x into sin 4x into dx. Means no change in the denominator. Now separate it in terms of two integrals. So I equal to integral of sin 10x into cos 4x upon sin 10x into sin 4x into dx minus second part cos 10x into sin 4x upon sin 10x into sin 4x into dx. ये हमने टू इंटीग्रल्स में इसको ब्रेक कर लिया, इजिली ब्रेक हो गया। तो वी सी दैट sin 10x गोइंग बाय sin 10x and sin 4x गोइंग बाय sin 4x cancelled. So remaining term I equal to integral of cos 4x upon sin 4x here, so cos 4x upon sin 4x into dx minus in the second term sin 4 get cancelled, cos 10x upon sin 10x into dx. तो इनको cos 4x upon sin 4x cot 4x भी लिख सकते हो और यहाँ cos 10x upon sin 10x को cot of 10x भी लिख सकते हो dx। लेकिन हमने यहाँ नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x अगर करोगे तो cos 4x इंटू 4 आ जाएगा, राइट। डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x इज cos 4x इंटू 4। तो इंटीग्रल क्या होगी इसकी, अगर यहाँ इंटू 4 अपॉन 4 एडजस्ट कर लेते हो तो i इक्वल टू 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ साइन 4x मीन्स log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। मीन्स ये टाइप का बोल सकते हो कि f' अपॉन fx टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको कॉट में न कन्वर्ट करें तो ही अच्छा है, और अगर कन्वर्ट कर लेते हो तो इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स की फार्मूला अप्लाई कर दो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, वो भी सिंपल, माइनस कॉस 10x अपॉन साइन 10x 1/10 लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन 10x प्लस सी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कॉस ऑफ 10x इंटू 10 होगा और तो इंटीग्रल में उसको क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो सी नेक्स्ट स्टेप i इक्वल टू 1/4 log of sin 4x minus 1/10 log of sin 10x प्लस सी इक्वल टू, अब इसको देखो एक आंसर तो ये फाइनल आंसर हो गया, यहाँ पर ए भी आंसर लिख के छोड़ सकते हो, लेकिन टेक्स्ट बुक में आंसर नहीं है। इसके लिए व्हाट इज एलसीएम ऑफ 4 and 10? यस, एलसीएम ऑफ 4 and 10 इज 20। तो इसको 20 कर दीजिए इंटू 5 और इसको 20 के लिए इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। एंड 1/20 इज कॉमन, तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग रह जाएगा
5 log sin 4x माइनस इंटू टू ये 20 कॉमन हो चुका है अपॉन में, तो माइनस 2 log sin 10x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर होता है देखो 5 n इंटू log m रेज टू n फार्मूला, तो ये 5 इसका पावर बनेगा और ये 2 इसका पावर बन जाएगा। तो 1/20 एज इट इज log ऑफ साइन रेज टू 5 4x अपॉन साइन स्क्वायर 10x प्लस सी, क्योंकि log m माइनस log m अपॉन n फार्मूला, या इसको होल रेज टू में लिखना है तो साइन 4x होल रेज टू 5 अपॉन साइन 10x होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर ही। तो I इक्वल टू 1/20 log ऑफ साइन रेज टू 5 4x अपॉन साइन स्क्वायर x 10x प्लस सी। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, किसी भी फॉर्म में लिखकर छोड़ सकते हो, बट इट इज योर टेक्सटुअल आंसर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16 completed easily. आफ्टर दैट जो एक सबसे अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 17, उसको भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कैसे सॉल्व करोगे। सी क्वेश्चन 17, लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें देखो कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हैज नो फार्मूला और साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स हैज नो फार्मूला, और किसी का भी डायरेक्ट डेरिवेटिव कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बट डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स, यहाँ से एक क्लू मिल जाता है, राइट। देखो मैं पूरा डिटेल्स एकदम ओपनली बता रहा हूँ कि हाउ विल यू गेस व्हाट शुड वी पुट फॉर द इंटीग्रल टर्म। पुट cos x इक्वल टू टी, चेक करके देखो, पुट cos x इक्वल टू टी, देयरफॉर माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ t dt बाई डी एक्स, तो देयरफॉर माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, जैसा हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी एडजस्टमेंट करते आ रहे हैं। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स हो गया माइनस डी टी, साइन एक्स इंटू डी एक्स बिकम्स माइनस डी टी, और हमने cos x को t पुट कर लिया है, तो न्यूमरेटर में रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ओनली cos क्यूब दैट इज t क्यूब, और यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर, करेक्ट, ओके। तो देयरफॉर I इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस साइन को बाहर रख लेते हैं, माइनस इंटीग्रल t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब देखो मैंने एक रूल बताया था कि व्हेन पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिनोमिनेटर we should divide first, means find the quotient and remainder। तो चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। डिविडेंड टी क्यूब, डिवाइजर इज 1 प्लस टी स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 1, तो टी क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1, quotient becomes first one t, तो t इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब एंड t इंटू 1 becomes प्लस t। नाउ चेंज द साइन, सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज करना होगा, माइनस एंड हियर प्लस बिकम माइनस, so t cube minus t cube get cancelled, that is 0, and here minus t remainder। अब देखो रिमाइंडर का पावर डिवाइजर से लेस हो गया, इसका 2 है हाईएस्ट, इसका 1 हो गया, तो स्टॉप द प्रोसेस, प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर इसके बाद के जो टर्म्स यहाँ पर लेने हैं, देखो कोसेंट फॉर्म में यहाँ लिखना है, तो I इक्वल टू देखो दिस माइनस साइन एज इट इज, कोसेंट माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, क्योंकि यहाँ पर माइनस टी है, वैसे फार्मूले में प्लस है, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, बट प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस। तो I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये टी देखो ये टी कहाँ पर लिखा गया, ये है, और ये माइनस टी हियर, माइनस टी अपॉन डिवाइजर टी स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टी स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, होल डी टी। तो माइनस ऑफ इंटीग्रल टी माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट के पहले थोड़ा सा थिंकिंग करो, देखो इसको तो इजिली इंटीग्रेट कर लोगे, टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, राइट, बट दिस इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रेशन हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 0 प्लस 2t मिलता है, ओरली करके देख लीजिए ऐसे,
डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इज 0 प्लस 2t, लेकिन हमारे पास क्या है, ओनली t। तो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2t एग्जैक्ट यहाँ दिखेगा। तो एक स्टेप और इसको लिखते हैं, I इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ टी डी टी, and here minus minus plus plus 1 by 2 into integral of 2t upon t square plus 1 into dt। देखो मल्टीप्लाइंग बाय 2 डिवाइडिंग बाय 2, तो क्वेश्चन इंटीग्रल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी डी टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि माइनस साइन एज इट इज, प्लस 1 by 2 as it is, integral of 2t upon t square plus 1, this is of the form integral of f dash x upon fx into dx equal to log of fx। तो log of mod of t square plus 1 plus c। देखो ये f dash x है, f dash upon fx, f dash x upon fx टाइप मीन्स ये f of f dash t और इसको बोलोगे f of t। इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली न्यूमरेटर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, log of mod of डिनोमिनेटर प्लस c। So I equal to minus t square upon 2 plus half log of mod of t square plus 1 plus c। Now we should resubstitute the value of t. T was cos x. Therefore I equal to minus half cos square x plus half log of mod of cos square x plus 1 plus c, which is constant of integration। So I equal to minus half cos square x plus half log cos square x plus 1 plus c। So half you can take common। I equal to 1 by 2 log of, ये टर्म को पहले लिख लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव को मैंने सेकंड टर्म बना दिया। देखो 1 by 2 कॉमन, टेकिंग दिस टर्म फर्स्ट, log ब्रैकेट 1 plus cos square x ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट मेन ब्रैकेट को क्लोज्ड प्लस सी। फिर से देख लो, आई इक्वल टू हाफ इंटू रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लॉग ऑफ स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस सी। तो ये टर्म को ऐसा लिखना है। तो यहाँ पर भी टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि वहाँ पर ब्रैकेट यूज करने में मिस्टेक हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। So please correct the answer in the textbook. This is the correct format of the answer. I equal to half bracket log of 1 plus cos square x minus cos square x rectangular bracket closed plus c। ये फॉर्म में लिखना है। Okay. So this is also very important question and your question number 17 completed here। तो 17 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज नंबर 3.2a, set 1 means question set 1 and question number set 2। तो फॉर एक्सरसाइज नंबर 3.2a many videos are given। तो छोटे छोटे पार्ट्स में करके मैंने सभी टाइप्स के, अलग अलग जितने टाइप्स के इंटीग्रल्स थे सभी टाइप्स के मैंने वीडियोस दे दिए हैं, कि जो भी स्टूडेंट अभी इस चैनल पर न्यू जुड़े हैं वो लोग अपना प्रीवियस वीडियो सभी रेफर करेंगे तो उनको फुल सोल्यूशन मिल जाएगा, फुल इंटीग्रेशन। और एक्सरसाइज नंबर 3.2a का ये क्वेश्चन नंबर सेट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और ये सेट 2 टुडे इट इज कंप्लीटेड। मीन्स क्वेश्चन सेट 2 all questions from 1 to 17 completed now। If you have any doubt in any question, so you can ask in the comment section without any hesitation, you can ask, I'll explain it again। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।